ہمارے چینل نئے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب ضرور کریں اور پاس والے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں، اس لیے کہ ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن اب تک پہنچ جائے گا۔ نہ جانے کیا یہ عالم ہے، ہر ایک جانب اداسی ہے، یہ میری روح۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر اور ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو قرآن مجید اس کا یوں نقشہ بیان کرتا ہے کہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی حالت سنائی اور کہا کہ ہم پر صدقہ و خیرات کر دیجئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی حالت زار پر بہت ترس آیا۔ یہ بھی تو نبی زادے ہیں، یہ بھی تو میرے باپ کے بیٹے ہی ہیں، آج ان کو اللہ نے کس مقام پر کھڑا کیا ہے کہ یہ مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تنگ دستی نے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بے حال کر دیا ہے اور ہمارے پاس پیسے بھی پورے نہیں ہیں، ہمیں وزن بھی پورا دے دیں اور ہمارے اوپر صدقہ و خیرات بھی کر دیں۔ کہ جو بھائی دشمنی کیے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے، تو اللہ کی شان، اللہ ان کو غریب ہی رکھا تھا، لیکن جن سے دشمنی کرے تھے اللہ ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور پھر وہ بھی ہوا کہ چھوٹے بھائی کو روک لیے تو اس میں بڑا بھائی بھی رک گیا، پھر گاؤں گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام پھر بھیج دیے، تمہاری مرضی، تمہیں کیا تو بھی کر لے، اب بس میں کیا کرتا ہوں، صبر جمیل کرتا ہوں۔ تو اب 9 بھائی گاؤں میں تھے، کھانا پینا کچھ بھی نہیں تھا، پھر آئے انہوں کہیں کو کھانے پینے کی چیزیں لے کر جانے، کہیں کو تو قحط سالی تھی نا 7 سال۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم پر صدقہ کرو، خیرات کرو، آدمی ضرورت کو پیسے دیو، قرض دیو، بعد میں دے دے تو اس میں تھوڑی کیا بھی ہوتی، غریبی معلوم ہوتی نہیں، لیکن ایک آدمی آپ کو مجھے صدقہ کرو، تھوڑا خیرات کرو، تو یہ تھوڑا شرمندگی کی بات ہے، ندامت کی بات ہے، اس سے شرم آ جاتی ہے۔ دیکھو خود حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک آدمی کے پاس کمانے کی طاقت ہے، اللہ اسے طاقت بھی دیا ہے، تجربہ بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، پھر بھی وہ لوگوں سے بھیک مانگتا ہوا کھاتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ آج معمولی بہانے بنا کر رشتہ داروں کے گھروں میں جا بیٹھ جاتی ہے، ہمارے گھر میں پکانا کم ہو جاتا ہوگا، یہ کہ گھر کو گئے 10 دن، 12 دن، 15 دن ایک گھروں میں بیٹھ جاتی، تو کچھ تو خیال کرنا نا، یہ بھی مفت میں کھانے کی تلاش نہیں ہے، اب آنے والے مہمانوں کو جو بولتی کیا انہوں تو جا کر بیٹھ جاتی 10 دن، 15 دن، 20 دن، اپنے بچوں کو بھیج ڈالتی، مہینے بھیج دیتی۔ تو اتنی حالت تنگی آ گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہمارے اوپر رحم کرو، ہم نہ صدقہ کرو، ہم نہ خیرات کرو، ہم ایک باپ کے بچے ہیں۔ تو اللہ کس حالت میں لایا، دیکھو 9 بھائیوں کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو تو مصر کا بادشاہ بنا دیا، لیکن دوسرے بھائیوں کو غریب بنا دیا۔ وہی بھائی حضرت یوسف کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کیا بول رہی، ہم نہ صدقہ کرو، خیرات کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ترس آیا کہ دیکھو بھائی میرے بھائیاں ہی کہتا ہے، تو بھی انہوں بھی میرے بھائیاں تھے، انہوں بھی نبی کے بیٹے تھے، ان کو بھی کیا ہوئی ہے، تکلیف پہنچی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اب بول دیے، ما فعلتم بیوسف واخی، تم نہ تمہارے چھوٹے بھائی کی بھی فکر نہیں ہے، بنیامین جو میرے پاس ہے، تم نہ تمہارے بھائی کی بھی فکر نہیں، جو بڑا بھائی، تم نہ تمہارے بھائی یوسف کی بھی فکر نہیں، اتنا سب کرے نا تو تمہیں معلوم کیا تمہیں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا کرے۔ تو جب بھائیوں نے اپنی حالت زار بیان کی تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام سے ان سے کہا، تم جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا کیا، جب تم لا علم تھے
तुम्हें होना को नहीं, जब तुम्हें मालूम नहीं था तब तुम्हें क्या क्या करे मेरे साथ, यानी यूसुफ के साथ। तो वो ये बात सुनकर हैरान हो गए, हमें यूसुफ के साथ करे तो कई साल हो गया हो, इनको कैसे मालूम? यूसुफ तो हमना बचपन से जुदा हो गया, हमना यूसुफ हमारा भाई जो यूसुफ है वो बचपन से हमारे अलग हो गया, इनको कैसे मालूम हुआ? परेशान हुए वो तो यही समझते थे कि ये तो अजीज मिस्र हैं, मिस्र के बादशाह हैं, वो यूसुफ को कहाँ समझते थे। तो चुनांचे वो उनकी जबान से यूसुफ का नाम सुनकर परेशान हो गए, तड़प गए और कहने लगे अइन्नका लअंत यूसुफ, आप इतना जबरदस्त यानी इतना अच्छा बोल रही हो तो क्या आप ही यूसुफ हैं? तो तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ अना यूसुफ व हाज़ा अखी, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और मेरा भाई है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भाइयों के बर्ताव का गम तो था, इसलिए ये नहीं कहा कि अंतुम इख्वानून, तुम भाई हो, बल्कि फरमाया हाज़ा अखी, ये मेरा भाई है। सिर्फ छोटे भाई को भाई बोले, इनको बोले नहीं, कहीं का तो गम था, बहुत सताए थे ना, कई साल तकलीफ दिए थे, इसलिए सिर्फ एक भाई को भाई बोले, सबको बोले ना, अंतुम इख्वानून बोले नहीं, बल्कि हाज़ा अखी, ये मेरा भाई है। तो फिर देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन, जो शख्स तक़वा और सब्र से काम लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला नेकी करने वालों का अज्र ज़ाय नहीं करते। अल्लाह की फर्मा बरदारी पर इज्जतों का फैसला। यहाँ एक नुक्ते की बात है कि जो बंदा भी अल्लाह की फर्मा बरदारी करता है, अल्लाह की इबादत करता है और हालात पर सब्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को कभी भी नीचा नहीं दिखाते। जो भी सब्र करता है, हालात पर जमे रहता है, सब्र करता है, अल्लाह कभी भी उसे नीचा नहीं करते और अल्लाह तबारक व तआला हमेशा उस बंदे को इज्जतों से नवाजते हैं। उसकी मिसाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद हैं। भाया प्लान डाले, कितना खराब प्लान डाले, कुएं में डाले, फिर उठा को जो शाम को काफिला जा रहा था उसमें देखो भेज डाले, फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में बेचा गया, फिर कैसे हालत आए, फिर जेल जाना पड़ा, फिर मार खाना पड़ा, इतना सब तोहमतें सब बर्दाश्त करे तो अब अल्लाह अजीज मिस्र बनाया, मिस्र का बादशाह बनाया। लोग सब उनको जलील करना, कम करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह उनको बड़ा बनाना चाहता था। तो क्या हुआ? किसका पूरा हुआ? अल्लाह का हुक्म पूरा हुआ। तो गोया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को वाज़ी लफ्जों में बता दिया कि देखो तुमने गुनाह का रास्ता इख्तियार किया तो तुम्हें अल्लाह ने आज फर्श पर खड़ा किया है, तुम्हें गुनाह का रास्ता पकड़े, आज अल्लाह तुम्हें जमीन पर खड़ा कर डाले और मुझे अल्लाह ने नेकी पर जमे रहने की तौफीक दी। मैं नेकी पर चले ये नहीं बोल रही, अंबिया के जुमलों में देखो, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी नेकी पर जमे रहने की, तो मुझे अल्लाह ने आज अर्श के तख्त के ऊपर, तख्त के यानी अर्श के ऊपर यानी तख्त के ऊपर बिठा दिया, बादशाह बना दिया। तो इससे क्या मालूम हो रहा है? गुनाह करने वालों को देख देख को पछताते रहना नहीं, कितने मजे में हिंदे, कितने मजे में हिंदे, कितने मजे में हिंदे। आजकल पूछना नौजवानों को, हर नौजवान को ख्वाहिश क्या? पैसे, क्या होना? पैसा होना, जबरदस्त बैंक बैलेंस रहना, गाड़ियां रहना, बेहतरीन कपड़े रहना, बेहतरीन चीज़ें रहना, खूब ऐश करना। क्यों? उन्हें भी ऐश करते, हमें भी करेंगे। लेकिन अल्लाह का कानून है कि जो आदमी गुनाह में बढ़ता जाता नहीं, उन्हें जरूर नीचे होले का आता रहता है, उसे मालूम होता है, लेकिन होले का आता रहता है। देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई नीचे होले का, यहां तक अल्लाह उनकी हालत ला दिया कि खुद भाई के सामने जाकर खड़े होकर उन्हें पूछने लगे कि हमने सदका करो। ये हालत लाया अल्लाह। जिस भाई को हकीर समझते थे अल्लाह वो भाई को बादशाह बना दिया, जो अपने आप को ताकतवर समझते थे अल्लाह वो भाइयों को गरीब बना डाले। हर दौर और हर जमाने में यही दस्तूर है कि जो बंदा गुनाह के रास्ते पर चलता है तो उसका अंजाम यह होता है कि अल्लाह उसको अर्श से लेकर फर्श यानी उन्हें ऊपर भी है, अल्लाह उसे नीचे लाकर डालती। और जो बंदा नेकी के रास्ते पर चलता है नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उसे तख्त और ताज अता फरमाते हैं। इसे दुनिया की इज्जतें भी देते हैं और आखिरत की इज्जतें भी देते हैं। और अहसनुल क़सस, पूरे किस्से में, पूरे किस्सों में सबसे बेहतरीन किस्सा किसका है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। ये इतना बेहतरीन किस्सा क्यों? सिर्फ दो ही बातें हैं इस किस्से में, पूरे किस्से का सिर्फ दो ही मतलब। एक क्या? मैं यत्तक़ी व यस्बिर, एक है तक़वा अल्लाह का डर, एक है सब्र। पूरे किस्से का निचोड़ है। अरे वसम, इसलिए हजरत जी फरमाते हैं ये आयत इस पूरी सूरत का
लुब्बे लुबाब है और निचोड़ है। यही समझाना मकसूद था कि देखें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या क्या किया और उसका क्या अंजाम किया, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या क्या किया, उसका अंजाम क्या हुआ। तो भाई इतना सताए लेकिन हज़रत यूसुफ सब्र करे सब्र करे सब्र करे। उधर दावत याकूब अलैहिस्सलाम भी सब्र करे सब्र करे सब्र करे। जुलेखा गुनाह की दावत दी, डरे अल्लाह से। औरतें गुनाह की दावत दी, डरे अल्लाह से। लेकिन अल्लाह फिर क्या करे उनको, इन अल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह क्या नहीं करता, डरने वालों को, सब्र करने वालों को कभी भी अल्लाह उनके सवाब को ज़ाय नहीं करता। तो अल्लाह हज़रत यूसुफ को कहाँ खड़ा कर दिखाया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात खोल दी तो भाई कहने लगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत अता फरमाई है। भाइयाँ क्या बोल रही, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर क्या करी है, फजीलत अता की है, और हम वाकई खतावार थे। देखो आदमी की तौबा 90% हो जाती, आदमी की तौबा 90% हो जाती। कब मालूम, क्या, जब आदमी को मैं गुनाह कर रूँ, ये गुनाह को उसे पक्का मालूम हो गया, उसकी तौबा 90% हो गई। अब 1% क्या कर तो न रोना सो, 90% होगी उसकी तौबा। कब, जब उसे ये दिल में आया कि मैं कर रूँ सो क्या गुनाह। इसीलिए देखो म्यूजिक को आज गुनाह समझती, एक मजा होता गुनाह कहीं को गति, बेपर्दगी को गुनाह समझती, हराम को गुनाह समझ रही, सूद को गुनाह समझ रही, पैसे बढ़ाने का एक तरीका, धोखे को, फ्रॉड को पैसे बढ़ाने का एक तरीका। तो गुनाह को गुनाह समझे, गुनाह को गुनाह समझे तो समझो 99% क्या हो गई, तौबा होगी हमारी। गुनाह को गुनाह नहीं समझे तो मुसीबत है, आदमी तौबा करता नहीं। फिर गुनाह को गुनाह समझा तो क्या करता उन्हें, तौबा करता उन्हें। अब फिर 1% क्या करना सुने, रो डालना अल्लाह के सामने होता। तो करने वाला ये समझ रहा है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, सो क्या गुनाह है, तो समझो अल्लाह उसे तौफीक दिया थी क्या, माफी मांगने की। तो भाइयों के दिल में आया कि हम क्या थे, गुनहगार थे। यह सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, मेरे भाइयों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये जुमला नहीं बोले हजरत यूसुफ, सुभान अल्लाह, क्या शान अंबिया की। 40 साल सतही, कितने साल, 40 साल सतही भाया, 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में ले जा बॉडी में डाले, लाता से हाथा से मारते हुए खींच ले जा बॉडी में डाले, अब्बा से अलग कर डाले, फिर उनको ले जाकर बेच डाले, फिर उनको बाजार में बेचना पड़ा, फिर किसी अजनबी के घर में बड़े हुए, फिर वहाँ गुनाह में मुसल्लत होना पड़ा, फिर वहाँ से कैद खाने में जाना पड़ा, फिर वहाँ आजमाइशें, फिर वहाँ मुसीबतें, फिर अब्बा रो रो कर अब्बा की आंखें चली गई थी। कितनी तकलीफें दिए 10 भाया, लेकिन एक ही बात में हजरत यूसुफ खत्म कर दिए कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जो आज तुम पर कोई पकड़ने में, माफ कर डाला तुमने। देखें ये रहमत और ये मेहरबानी मोमिन की शान बनना, ये इंशाअल्लाह ये मेहरबानी, ये रहमत किसकी शान बनना है। क्यों, हम किसकी उम्मत हमें, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हमें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानशीन दुश्मनों को भी माफ कर दिया। जो हमारे नबी को मारने के प्लानिंग बनाते थे, हमारे नबी उनको भी माफ कर दिए। अपने चचा के दुश्मनों को भी माफ कर दिया। हजरत हमजा को शहीद करने वाले हजरत वाहशी, उनको भी हमारे नबी माफ कर डाले। हजरत हिंदा, उनको भी हमारे नबी माफ कर डाले, उन्होंने इस्लाम लाए। चाचा के टुकड़े टुकड़े करने वाले, चाचा का दिल चबाने वाली हजरत हिंदा ईमान लाई, तो हमारे नबी क्या बोल डाले, छोड़ डालो, बदला ले उनको। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को जिन लोगों ने तकलीफ पहुंचाई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ कर दिया। हत्ता कि बीवी के ऊपर गलत काम की तोहमत लगाने वाला अब्दुल्ला बिन उबय भी जब मौका मिला हमारे नबी को, तो हमारे नबी सिर्फ मिंबर पर खड़े होकर ये कहने लगे कि चंद लोगों की वजह से मुझे तकलीफ पहुंची है, तब बोलकर उतर गए। कौन वो, क्या करे, कुछ भी नहीं बोले हमारे नबी। उस नबी की उम्मत हमें बदला लेने में पड़ेगी आज, बदला लेना, बदला लेना, बदला लेना। ये हैरान कुन बात, ये एक बंदा तलवार पकड़कर खड़ा है और कहता है, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दख्त से सट्टे का लेकर सो रहे थे, एक बद्दू आया, आकर हमारे नबी की तलवार उठा लिया। साहबा सब सोए पड़े, हमारे नबी भी सो कर ही हमारे नबी की तलवार उठाकर यहाँ मारने लगा। मैं यासिमुका मिन्नी या मोहम्मद, हमारे नबी उठे, उठते क्या पूछ रहा है, मैं यासिमुका मिन्नी या मोहम्मद, अय मोहम्मद शान से कौन बचाता तुम ना, तलवार मेरे हाथ में है, तुम्हें मेरे सामने ही कौन बचाता तुम ना, कितना घमंड, कितना गुरूर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह, क्या फरमाया, अल्लाह। ये कहना था कि उसके दिल पर ऐसा असर पड़ा अल्लाह के नाम का कि वो कांपने लगा और तलवार छोड़ डाला। हमारा नबी तलवार उठा लिया। अब हमारा नबी पूछे, मैं ये आसिम कमिन्नी, अब तुझे कौन बचाती, मुझे तो कौन बचा लेता है, मेरा अल्लाह बचा लेता, तुझे कौन बचाता। तो मिन्नतें करने लगा, तड़पने लगा, माफी मांगने लगा, मुझे कौन बचाती, तुम्हें बचा सकते हो, मुझे छोड़ डाला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानी दुश्मन को भी माफ कर दिया। पढ़कर हैरान होते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना जल्दी माफ फरमा दिया करते थे, कितना जल्दी माफ कर दिया करते थे। एक हदीस में है कि जो बंदा दुनिया में अपने भाई की गलती को जल्दी माफ कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी गलतियों को जल्दी माफ कर देंगे। यहाँ कितना जल्दी माफ करने में, कोई आया हमारे पास, जी मेरी गलती को माफ कर, जो जी मैं माफ कर डाला। यहाँ जितना जल्दी करता कि कल क़यामत के दिन अल्लाह मैदान हशर में बंदे के गुनाहों को उतना जल्दी माफ कर दिया था। हद से ज्यादा तकलीफ दिया, क्या तकलीफ दिया नबी का जान लिया। हमें खुद पढ़ते सब बातों में, एक मरतबा कोई गुस्सा हो रहा है हमारे पर, हमें गुस्सा ठंडा करना, 10 बार गुस्सा हुआ नहीं, गुस्सा ठंडा करना। हमें क्या कर लेंगे, आखिरी जान से मार लेती। अब उन्हें सुधरता नहीं है, तुम्हें भी सुधरते नहीं। अब उन्हें गालियां पर गालियां दे रहा है, लड़ाइयों पर लड़ाइयां कर रहा है, तुम्हें भी करती, कब तक करती, फायदा है नहीं है। एक और हदीस है, तवज्जो से सुन लीजिए। हजरत जी फरमाते हैं, जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा किसी से अपनी गलती की माफी मांगे, मेरे से गलती हो गई है मुझे माफ करो, किसी से माफी मांगे, और दूसरा बंदा उसको माफ ना करे, मैंने बोल दिया कि मैं माफ नहीं करता, तो ये माफ ना करने वाला क़यामत के दिन हौद कौसर के पास ना आए। जो माफ नहीं करता नहीं, उन्हें कहा नहीं आना, मेरे हौज के पास है, नहीं आना, मैं नहीं पिलाता उसे। कैसा मालूम होता हमारे नबी को, क्यों मालूम नहीं होता, क्या दुनिया समझ गई है। खाली एक कैमरा लगदल को 10,000 आदमी थे तो 10,000 आदमी के चेहरे आ जाती। कैमरे में उतनी ताकत है, मेरे अल्लाह के पास इतनी खुदरत नहीं कि हर अमल का, हर उम्मती का अमल हमारे नबी के सामने पेश करे। हाँ, बाप की वीडियो बेटा पकड़ दिखाता है, क्या क्या जी करे तुम्हें कमा होगा। हाँ, बेटी का वीडियो, भाई बहन का वीडियो भाई पकड़ के दिखाता है, क्या क्या जी करे तुम्हें को। अल्लाह हिफाज फरमाए। आज ये सबसे बड़ा गुनाह याद रखो, ये किसी को गुनाह करते हुए क्या करना, वीडियो पकड़ना, ये क्या है, सबसे बड़ा गुनाह। ये उनके आयबों को बाहर डाल रही समय, तुमने क्या हक है पकड़ने का। तुम्हें अपने आप को वीडियो पकड़ कर अपने आप को पाक दामनी का एतराफ कर रही, तुम्हारी रातें कैसी है अल्लाह को मालूम। दिन अच्छा गुजरा तो रात भी अच्छा गुजरती, क्या अच्छा, क्या नौजवान, क्या बोलो, जियो भाई, जियो को दिया उन्हें, क्या दिया, जियो को दिया उन्हें पापा, हमें जीते थे। तो हमारे गलतियां हम ना मालूम नहीं रात क्या है, दिन में हमें बन जाते पाक साफ, पाक दामन, नहा लिए, कपड़े पहन लिए, अब मुत्तकी परहेजगार। अब गुनाह करने वाले देखे तो खून गर्म हो जाता हमारा। हमारे गुनाहों को देखो अल्लाह को कितना गुस्सा आता रहेगा, लेकिन अल्लाह कुछ पकड़े हम ना। हमने देखा है कि कई मर्द और कई औरतें अपने दिल में बहुत रंजिश पालते हैं। कई मर्द कई औरतें क्या करती हैं, दिला में रंजिशें पालती हैं, दुश्मनियां पालती हैं। छोटी छोटी बातों की रंजिश जिंदगी भर चलती रहती है। शादी का रोखा नहीं मिला को लड़ाई हो गया, मालूम तुम ना। शादी का रोखा पहले घर को आने को लड़ाई हो गया, मालूम। एक मरतबा एक जने रोखे दिले गए, इत्तेफाक से 1-2 घर बाकी थे, रोखे खत्म। रोखे क्या हो गए शादी के,
खत्म हो गए, इत्तेफाक से ना बाहर ही बैठे थे, वहां तक दे लगे साले ये रुखे खत्म हो गए ना, घर को जाके ले लगे वो चले गए इस बाप। शुरू बात यहां तक दिए भाई, हम ना दिए नहीं, हमें जाने का ना को। फिर उन्होंने रुके ले लगा को देने गए तो अब कहीं गई हिस्सों क्या करेंगे आप उन्हें, उसे समझना नहीं, नौकरी कैसा बोल रही हो, नहीं रुके हो गए थे, ले लगाने गए थे, तुम्हें आना था, इनको भेजना था जग ले लगाओ को। ये लड़ी क्या भी है, बच्चा खाता खाता मौस का छिलका बाजूगर में डाल दिया, लड़ाई शुरू हो गई, कचरा थोड़ा उड़कर आ गया, लड़ाई शुरू हो गई, हमारी जगह में कोई आकर बैठ गया, लड़ाई शुरू हो गई, हमारी बिंगी की जगह दूसरे कोई बिंगी रख डाले, लड़ाई शुरू हो गई, छोटी छोटी बातों पर। एक शादी में तो मैं बाकायदा देखा, 900 का बाबा, किसका 900 का बाबा, बीड़े मंगवाया, 2 बीड़े ले लगा होगा तो नहीं बल्ला के ले लगा क्या ले लगा ही नहीं, प्लेट ढकलाल रुट को चले गया क्या, प्लेट ढकलाल को मुझे इज्जत ही दिए नहीं को बाकायदा चला गया उनको। छोटी छोटी बातों से जिंदगी में नफरत आप पालती, शादी में गिफ्ट दिए नहीं को लड़ाई शुरू हो गई, छोटी छोटी बातों पर सालों चलती रहती हैं। हालांकि ये मोमिन की शान के खिलाफ है, आखिर सब इंसान है, खता किसी से भी हो सकती है, चुनांचे दिल से गुस्सा और रंजिश को निकाल देना चाहिए। किसी से भी गलती होती भाई, आज हमें दूसरों को माफ करे, सब हमला कौन तो माफ करता है। बेंगलुरु का सफर था, बेंगलुरु का सफर था, बारिश का मौसम था, फजर पढ़ लिया, कार में जा रहा था तो ग्लास सब बंद थे, साइड के विंडो सब बंद थे, तो मालूम नहीं हो रहा था, मैं जा रहा था, लोग भी नहीं थे, होती ट्रैफिक भी नहीं थी, तो एक आदमी जोर से आया 2 व्हीलर में, मैं खड़ा में मारे डोर खोले, नजर आता क्या तुम ना, तुम जा रही हो कार में, कीचड़ सब मेरे ऊपर उड़ रहा है, देखो जो आजू बाजू, तुम्हारे पास ही कार है नहीं, हमारे पास भी बड़े गाड़ियां हैं, थोड़ा देखो जाना छोटे गाड़ियां वाले को, क्या कतो बोल रहा बेचारा। मैं खामोश कीच एक बात बोला, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो। लोगों को गुस्से में था सो, घूर को देखता था सो, एक्सप्रेशन भी बदल गया था उसका, उसकी हालत बदल गई थी, उतना गुस्से में होकर भी न कहने लगा, है छोड़ क्या आपने, होता रहता उसमें क्या है, माफी से मांगो ना, कहीं तो मेरी पकड़ी, मेरे लिबास को देखो न, ताज्जुब में पड़ गया कि यहाँ माफी मांग रही मेरे से, उन्हें होता रहता सब छोड़ो कैब ने, वैसे सब कैब ने, मैं बोल दिया सही सच हद ले, कैब ने चला गया पाप बेचारा। मैं वो कार उतर को क्या, अब क्या मैं आता सच क्या कर लेता तू, तुम्हारा अब्बा का रोड है, तुम्हारा अब्बा रोड डाले, हाँ क्या बोल अब, तो उन्हें भी उतरता, उसकी गली वो, मेरी गली नहीं वो, उसके आदमी आते, मुझे क्या हालत करते, जरूरत है ये सभी मर्दान की दिखा, मारना था मौलाना, नौजवान आ रहते तो क्या करते, मारना था मौलाना, नौजवानों को गुस्सा ज्यादा, कार चलाते वक्त, जा काम देख चल। हमारा अम्मी के साथ मैं आ रहा था कार में, तो एक आदमी टिका है ऑटो वाला, जय मौली साहब आंखें दिखते नहीं, लाइट ऑन छोटे डालो जी, टिका को गाली दिया जा रहा हूँ मैं, क्या टिका क्या तो बोलता रहेगा मैं, कार स्लो कर रहा तो टिका को मुझे गाली दिया जा रहा हूँ, अल्लाह हो जाता है, हंसी आएगी मन से, हंसी आएगी, सही हंसी आएगी मन से, क्या आगे देखो इंसानियत, गुस्सा आया नहीं। एक बूढ़े आदमी को मैं क्या करा, रास्ते में आ रहा था, बूढ़े आदमी ऑटो में थे, मैं खड़ गया पाप, पहले उन्होंने चल जाओ मामू को, तुम्हें निकलो जी मुझे सब पहले है, हमने क्या भेज सकते, या अल्लाह क्या रहा भाई मुसीबत है, उनके ऊपर रहम करे तो क्या बोल रहे हो ना, गुस्सा आ रहा उनको, वैसा पाल लिए अपने अंदर। मैं बोला नहीं, एक डॉक्टर साहब कई सारे मरीजों को हंसा हंसा कुछ क्या कर डाले, अच्छा कर डाले, मात्रे खिलाई उनको, दूध की गोलियां खिला खिला को क्या कर डाले, उनको अच्छा कर डाले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी जिंदगी है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जब रात को सोने लगता हूं तो अपने सीने को कीने से खाली करता हूं, कीना बदला लेना में, ये दिल में रहता नहीं, एक है गुस्सा, एक है कीना, मैं उसे बदला लेना, मैं उसे छोड़ता नहीं, ये बोलती नहीं, इसे खाली कर लेता हूं, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा।
अरे बस नंबर 2, फतह मक्का के दिन भी यही हुआ था कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मताफ के अंदर हजर अस्वद के सामने तशरीफ़ फरमा हुए तो उस वक्त कुफ़ार मक्का आए हमारे नबी के सामने और उन्होंने आकर माफ़ी मांगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही कहा था जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, जा मैं भी क्या कह रहा तुमने आज माफ़ कर दला। 20 पर 2 साल तकलीफ देने वाले भाई कुफ़ार मक्का, 13 साल मक्के में सताने वाले, इनको भी हमारे नबी क्या बोल डाले, ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, जा मैं तुमने क्या करा माफ़ कर दला। बल्कि फतह मक्का से पहले एक मौके पर अबू सुफियान रास्ते में पकड़े गए। वो चाहते थे कि मैं मुसलमान हो जाऊं, मगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आने से डरते भी थे कि कई जंगों की वजह मैं ही बना था और मैं कई मुकाबलों में सरदार बन के आया था। अब जब मैं माफ़ी मांगने के लिए जाऊंगा तो पता नहीं कि क्या हुक्म होगा। रिश्तेदारी भी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससरे भी हैं अबू सुफियान, उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ उम्मे हबीबा के अब्बा अबू सुफियान वो क्या सरदार भी थे, जिम्मेदार भी थे, कई जंगा में आए थे हमारे नबी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो उनके दिल में आया कि अब मैं गया तो मुझे नबी माफ़ करती कि नहीं की, क्योंकि उनके दिल में था। चुनांचे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से मिले अबू सुफियान और पूछा, आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं और जाकर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वही अल्फाज कहें जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने कहा था, लक़द आथरकल्लाहु अलैना इन कुन्ना खातिईन, कि जो बायां जुमले बोले थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो बायां जुमला बोले वो जुमला तुम्हें भी क्या करो नबी के सामने बोल डालो। चुनांचे अबू सुफियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर उन्होंने यही अल्फाज कहे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फ़ौरन फरमा दिया, ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी जंगों में जिम्मेदार बनकर आए उन्होंने कुफार के साथ, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं, उनको माफ़ कर रहे। भाइयों की हालत सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक तो उनको फ़ौरन माफ़ कर दिया और ला तसरीब अलैकुम अल-यौम का मुजदा जाफिरा सुनाया और दूसरा उनको दुआएं देते हुए कहा, यग़फिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह भी तुम्हें माफ़ करे। मैं भी माफ़ करता हूँ और कौन भी माफ़ करे, अल्लाह भी माफ़ करे। तो ये होती है अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक, ये होते हैं नबियों की आदतें कि वो अपने क्या करने करते, अपनी कौम को भी बदला नहीं लेते। और उन सारे नबियों में सबसे बड़े नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी की ज़िंदगी तो अखलाक से भरी पड़ी है। अल्लाह खुद फरमाता था, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हुज़ूर आपकी आदतें तो बड़ी अच्छी है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक अच्छे अखलाक वाला, एक अच्छी आदत वाला इतने बड़े मकाम पर पहुंच जाता है जितना बड़ा मकाम दिन भर रोज़ा रखने वाले, रात भर तहज्जुद पढ़ने वाले को भी नहीं मिलता। हमारी ज़बान में सच्चाई आ गई, हमारे व्यापार में अमानतदारी आ गई, हमारी ज़िंदगी में अमानतदारी आ गई, हमारे अंदर अल्लाह की हया और शर्म आ गया, तो हमें वो मकाम तक चले जाती जहाँ मकाम बड़े बड़े वलियों को नहीं मिला, वो मकाम हम ना मिल जाता। सिर्फ ज़बान में सच्चाई, अमानतदारी, जुल्म नहीं, इंसाफ, ये 3 चीज़ों को मजबूती से पकड़ो। देखो कसम खुदा की, मैं इसलिए बोला नहीं कि नेकियों पर जो बंदा चलता है अल्लाह उसे फर्श से उठा को अर्श तक ले जाती, जो गुनाहों पर चलता नहीं उन्हें अर्श से निकलने कहाँ आता है, फर्श पर आ जाता है, नीचे आ जाता। ऐसे कई सारी मिसालें कि हज़रत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जब मक्का में थे तो कोई नहीं पहचानते थे, जब व्यापार करते तो कोई नहीं पहचानते थे। अरे बस जब उन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, जब अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करे, जब नेकियों में आगे बढ़े, तो सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला दुनिया के कोने कोने तक भी नाम मशहूर है। किसका? सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु, फ़ारस के हमें देखे नहीं आज तक, लेकिन उनका नाम कितना प्यार से लेती नहीं। सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु तआला, रूम के क्या नाम मशहूर है हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु, हबशा के क्या नाम मशहूर है, बिलाल जन्नत में मेरे सवारी का लगाम पकड़कर मेरे साथ साथ चलने वाला बिलाल है। क्या कौन जानते थे हजरत उमर बिन, हजरत अबू बकर को कौन जानते थे? कोई देखे मक्का आज तक? नहीं देखे। लेकिन आज भी हजरत अबू बकर का नाम जब दिल में आता तो सुकून मिलता है। न देखे ही, न सुने ही, न पैदाइश की जगह देखे, लेकिन उनका नाम क्यों इतना प्यार से ले रही? इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारी।
किसी 10 कोई एक नाम बोलो जिसकी वजह जिनका नाम लेते ही दिल में खुशी आ जाए, सहाबा को छोड़ को, बुजुर्गों को छोड़ को, एक नाम जिनका नाम लेते ही सुकून मिले दिल को, एक नाम बोलो जानते, ज्यादा ना कोई, चैलेंज कर तुम्हें। अरे बोलो भाई, एक तो भी बोलो भाई, एक भी नहीं, हाँ नहीं बोल भी सकते नहीं, क्यों? एतराफ करना है, पक्का मानना है, ऐसी जिंदगी गुजारे सहाबा, ऐसी जिंदगी गुजारे अल्लाह वाले, कहीं पैदा हुए, कहीं जिंदगी गुजारे, कहीं इंतकाल हो गए, लेकिन यहां तक मशहूर है और हजारों साल हो गए। हमना 2-3 साल पहले कौन इंतकाल हो वो मालूम नहीं है, हमना हजारों साल पहले, लाखों हजारों किलोमीटर रहने वाले सहाबा हमने याद थी, बुजुर्गान दीन हमने याद थी, उलमा हमने याद थी, बड़े बड़े अल्लाह वालों को कौन देखे भाई आज तक, लेकिन उनके प्यार, उनकी मोहब्बत सिर्फ फोनों से चल रही है, नहीं उनके बयान सुनते ही नहीं। तो यही बोलने का मतलब है कि नेकियों की जिंदगियों में आगे बढ़ो, गुनाहों की जिंदगी में थोड़ा रुको, ब्रेक लगाओ, थक जाओ, थक गए ही, गुनाह कर कर को थक गए ही, अल्लाह थका नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, नेकियों में आगे बढ़ते रहो, इंशाल्लाह गुनाहों से कम होते रहो, तो अल्लाह का कानून है। अभी इंशाल्लाह बातें आती रहेंगी, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह